8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਏ ਮੈਥ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 5 ਵਰਗ ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦੀ ਅਭਿਆਸ 5.2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5.1 ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਦੱਸੋ। ਬੇਟਾ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ। ਹੁਣ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 1 ਆਉਂਦਾ, 2 ਦੂਣੀ 4, 3 3 9, 4 ਚੌਕੇ 16, 5 55 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 ਬਟਾ 64, 9 ਆਇਆ 81। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ, 1 ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਆ ਰਿਹਾ 1, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 1, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 9 ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ 121 ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਜਾਂ 9। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ 1 ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 1 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 1 ਤੇ 1, ਤੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 729। ਹੁਣ 729 ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ 9 ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ 9, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 9 ਹੈ ਕਿਤੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਹੋਰ 9। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 7। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 3 ਜਾਂ 7, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣਗੇ 3 ਔਰ 7। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੀ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे ने इतना लिखना है, पंजाबी वाले ने बस इतना ही लिखना है 3 ਜਾਂ 7। इंग्लिश वाले 3 और 7। जे वर्डिंग च लिखना तो इस तरह करना लिखना है, ठीक है बेटा। हूँ 676 का अखीरला अंक की है 6 है, लभो इतने 6 आ देखो 6 मिल गया, आंसर 4 होएगा। या फिर 6 मिल गया, आंसर 6 होएगा। आंसर आएगा 4 ਜਾਂ 6, 4 और 6। इस तरह हम आप बाकी क्वेश्चन करने लगे हैं। देखो हम बेटा, हम 484 का अखीरला अंक 4 है। आप देखा 4 के सामने 2 लिखा तो एक 4 के सामने 8 लिखा, तो 2 ਜਾਂ 8। उम्मीद है समझ आ रही है। ये अखीर देखो 1 है, 1 के लिए 1 लिखा है तो 1 9 लिखा है, 1 ਜਾਂ 9। इंग्लिश वाले बच्चे ने बस और पाना जा रही था। 1600 जिदे खींच 0 होंदा है वो 0 0 ही है बेटा, वो 0 ही आएगा बस, 0 इक्को ही अखर। तो 5 वास्ते भी बेटा इक्को ही अखर है 5 बस। इस तरह पहला क्वेश्चन साडा खत्म हो गया, जिहदे विच असीं सिर्फ यही दसना सीगा कि दित्ती हुई संख्यावां दे वर्गमूल दा इकाई अंक किहड़ा होवेगा। दूजा क्वेश्चन करते हैं। दूजा क्वेश्चन देखो, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਰੋਮ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 2 3 7 ਜਾਂ 8, 2 3 7 ਤੇ 8 ਤੇ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 0 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 0 ਹੈ, 3 0 ਹੈ, 5 0 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 2 3 7 8 ਅੰਕ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 7 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟਾਂਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 3 ਸਿਫਰ ਨੇ, 1 ਸਿਫਰ ਹੈ, 5 ਸਿਫਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹੈ, ਟਾਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ 2 ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਖੀਰ 'ਚ 2 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 512 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ। ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੇਖੋ 8 ਹੈ, 8 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ 9 ਹੈ, ਦੇਖੋ 9 ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 4 ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 1 ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 0 ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ 0 ਹੈ, ਤਾਂ 1320, 7 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 3617।
मेरी गल ध्यान नाल सुन लो, जिन्हां दे अखीर विच 2 है, 3 है, 7 है जां 8 है उन्हां नूं लिखना है। तो जिन्हां दे अखीर च 0 टाक संख्यावां विच हन, जिहदा 0 टाक नंबर है, 1 0 है, 3 0 है, 2 वाले नहीं, ये सारे नंबर पूर्ण वर्ग नहीं हैं, पूर्ण वर्ग नहीं हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यही लिखना है, पर पंजाबी की थां इंग्लिश आ लिख देनी है। दूजा क्वेश्चन खत्म। उम्मीद है समझ आया होगा। तीजा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है हेठा दित्तियां संख्यावां दा घटाओ विधि नाल वर्गमूल पता करनी। बेटा विधि किहड़ी है? घटाओ विधि, रिपीटिड सबट्रैक्शन। तो हुण की करना है, तुसीं जिहड़ा भी नंबर दिता है उस नंबर दे विच्चों टांक संख्यावां घटानी। 64 दे विच्चों पहलां 1 घटाना है। घटाओ करनी आती सारिਆਂ ਨੂੰ। कितना आ गया? 4 चौ 1 3 63 आ गया। फिर थोड़ी जी जगह छोड़ के हुण 63 दे विच्चों 1 तो बाद टांक संख्या किहड़ी आती है? 2 छड्ड दिओ, 3 घटाई करनी है, घटाई जाना बस। कितना आ गया? 60। थोड़ी जगह छड्ड के हुण 60 दे विच्चों 3 तो बाद 5 आंदा बेटा, घटा देना है। कितना आ गया? 55। हुण 55 दे विच्चों तुसीं 5 तो बाद 7 घटाउणा है। 5 ने हासिल ले लिया, 15 चों 7 गए 8, बकाया रह गए 4, 4 का 4 आ गया। घटाओ करनी आती सारिਆਂ ਨੂੰ ना। 48 दे विच्चों 9 घटाने ने, 1 3 5 7 9 टाक संख्यावां। 18 च 9 गए 9, इत्थे रह गए 3, 39। 39 दे विच्चों हुण 11 घटाने आ गया 28। फिर 28 दे विच्चों तुसीं 13 घटाने आ गए 15। तो फिर 15 दे विच्चों तुसीं 15 ही घटाने हैं, क्योंकि 13 तो बाद 15 आता है। आ गया 0। जो बेटा 0 आ गया तुसीं घटाओ करनी खत्म कर देनी है। तो गिननी है घटाओ हुईयां कितनियां? 1 2 3 4 5 6 7 8। ਇਹਦਾ मतलब 64 ਦਾ वर्गमूल कितना होया? वर्गमूल का निशान इनू वर्गमूल का निशान बोलते हैं बेटा। वर्गमूल 64 किहदे बराबर आ गया? 8 दे। ये तुहाडा आंसर है। क्वेश्चन खत्म। देखो कितना सौखा सी, सिर्फ घटाओ कीती है। इस तरह इसका अगला भाग देखते हैं। दूजा भाग जिहड़ा सानूं दिता गया 49। 49 कितना करना है? सेम तरीका, सेम मैथड हैगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 49 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 1, आ गया 48। फिर 48 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 3, 45। 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 5, 40। 40 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 7, 33। 33 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 9, 13 हासिल ले लिया। 13 चो 9 गए 4, 24 आ गए। 24 चो 11 घटावांगे बेटा, आ गया 13। तो 13 दे विचों तो फिर 11 तो बाद 13 ही घट गए, आंसर आ गया 0। हुण आपां घटावां गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ਇਹਦਾ मतलब 49 ਦਾ वर्गमूल कितना होएगा? 7 होएगा। बी पार्ट कंप्लीट। तीजा भाग देखो बेटा 121 सीगा। मैं 121 चो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 उदों तक घटाता रहा ਜਦੋਂ तक 0 नहीं आ गया। घटाओ ध्यान ना करनी, गलत ना हो जाए। हुण गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ते 11। ਇਹਦਾ मतलब वर्गमूल 121 11 ਦੇ बराबर होवेगा। तीजा पार्ट भी कंप्लीट। चौथा पार्ट देखो। चौथा पार्ट सीगा 100 बेटा। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ सेम इसी तरह 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक घटाया तो 0 आ गया। तो गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਇਹਦਾ मतलब वर्गमूल 100 के बराबर आ गया? 10 के बराबर। ये मैथड सीगा साडा घटाओ विधि। उम्मीद है समझ आई होएगी। हुण चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन कहता है कि हेठा दित्तियां संख्यावां दा अभाज गुणनखंड विधि नाल वर्गमूल पता करो। हुण घटाओ विधि नहीं है, अभाज गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। सब तो पहले तुहानूं पता होना चाहिए कि अभाज नंबर किहड़े हुंदे ने। प्राइम नंबर्स याद रखियो 2, 2 तो बाद 3 जिहड़े सिर्फ अपने पढ़ते जाते हैं। 5 7 11 13 17
19 23 इस तरह के नंबर्स। ठीक है बेटा, इन्हों आप कहने अपाज नंबरस। तुसी सिर्फ यही पहाड़े लै सकते हो, कोई होर पहाड़ा नहीं वरत सकते, इस गल का ध्यान रखना है। हुण करना किद्दां है, सब तो पहले 3600 के बनाने गुणनखंड। देखो किस तरह बनाने, एक सीधी लाइन खिंचनी है, इत्थे तुसीं 3600 लिख देना। हुण कुछ गल्लां ध्यान नाल रखियो, जिहदी अखीर दे विच 0 लगा है, 2 लगा है, 4 लगा है, 6 लगा है जां 8 लगा है, ਉਹਨੂੰ हमेशा 2 नाल ही भाग करनी है, होर किसी नाल करन दी लोड़ ही नहीं। जिहदे अखीर 'च 5 लगा है, ਉਹਨੂੰ 5 नाल ही भाग करनी है। लागी गल समझ? हुण ध्यान नाल देखो, ਇਹਦੇ अखीर 'ਚ 0 लगा है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 नाल भाग करांगे। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਬਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3600 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 2 एकम 2 बकाया 1 ऊपर उतार लिया 6, 2 अट्ठे 16 बकाया ख़त्म, 2 जीरो इकट्ठे ऊपर लग गए, आंसर आ गया 1800। भाग पूरी होनी जरूरी है बेटा। फिर अखीर 'ਚ 2 जीरो ही है ना, ਜਦੋਂ तक अखीर 'ਚ 0 है 2 ਨਾਲ ही भाग करी जाओ। ਹੁਣ 1800 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ भाग करनी है, तो तुम इस तरह रफ साइड पर कर सकते हो। 2 आया 18, सारा बकाया ख़त्म हो गया, 2 जीरो ऊपर लग गए, कितना आंसर आ गया 900। फिर 2 ਨਾਲ भाग ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 900 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ भाग ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, 2 ਦਾ ਪੜਾ ਪੜਦੇ हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 बकाया 1 ऊपर उतार लिया 0, 2 पंजे 10 बकाया ख़त्म, 0 बचा तो ऊपर लग गया, आंसर आ गया जी 450। हजे भी अखीर 'ਚ 0 ही है, इस करके फिर 2 ਨਾਲ ही भाग किया जाएगा। 450 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ। ਹੁਣ 450 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 2 दूनी 4 बकाया ख़त्म, ऊपर उतार लिया 5, फिर 2 दूनी 4 बकाया 1 ऊपर उतार लिया 0, 2 पंजे 10, तो साडा आंसर आ गया 225। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੇਖੋ 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, मतलब ਹੁਣ 2 ਦਾ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ 5 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਦਾ ਪੜਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 225 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਚੌਕਾ 20 बकाया 2 ऊपर उतारिया 5, 5 50 25, भाग पूरी होगी, आंसर कितना आ गया 45। अखीर 'ਚ 5 होने के कारण ਅਸੀਂ फिर 5 ਦਾ भाग कर रहे हैं, 5 नाम 45। पर ਹੁਣ 9 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ 9 3 ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? 3 ਤੀਆ 9, ਫਿਰ 3 एकम 3। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਫ ਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, वर्गमूल 3600 इस तरह लिखना है, बराबर है यही वर्गमूल का निशान लगाना है वड्डा जा। ये सारे नंबर लिख देने गुणा पा के। 2 कितनी बारी लिखने? 2 1 2 3 4 बारी 2 लिखने हैं। 1 2 3 4, 2 बारी 5 तो 2 बारी 3। तो हुण जोड़े बनाने हैं तुसीं। जिद्दां देखो आ 2 का जोड़ा बन गया, इनू बाहर लिख देना है। ये जोड़ा बन गया, एक जोड़े का एक अखर बाहर जाएगा। 5 के जोड़े का 1 5 बाहर आ गया, 3 के जोड़े का 1 3 बाहर आ गया। तो बस इन गुणा कर देनी है। 2 दूनी 4, 4 नूं 5 किया 20, 20 दिया 60। तो 3600 का वर्गमूल तुहाडा आ गया जी 60। क्वेश्चन खत्म। उम्मीद है समझ आया होगा कि किस तरह तुसीं गुणनखंड बनाने हैं अपाज। तो उस तो बाद 2 के जोड़े का 1 1 नंबर बाहर कड्ढी जाना है, तो वो तुहाडा मल गुणा करके आंसर आ जाएगा। ए भाग साडा खत्म हो गया। हुण बी भाग करते हैं। हुण बी भाग देखो 676 है। जिवें तुहानूं दस्सिया कि असीं पहाड़ा सिर्फ 2 का ले सकते हैं। 3 5 7 11 13 17 19 23 याद रखना है। इन्हां तो इलावा कोई होर पहाड़ा आपां नहीं ले सकते। तो आपां हुण शुरू करन जा रहे हैं 676। तो मैं स्टार्टिंग जी गल दसी सी कि जेकर किसी के आखिर 'ਚ 0 होवे, 2 होवे, 4 होवे, 6 होवे ते 8 होवे तो 2 नाल भाग करो, तो जे 5 होवे तो 5 नाल भाग करो। हुण तुसीं देखो ये आखिर 'ਚ की है 6 है, तो भाग कितना करनी है? 2 नाल करनी है। 676 नूं असीं कितना भाग करन जा रहे हैं? 2 नाल। 2 तिया 6 बकाया कुछ नहीं, ऊपर उतार लिया 7। 2 तिया 6 बकाया 1 ऊपर उतार लिया 6। 2 अट्ठे 16। तो
तो साढ़े को आंसर आया 3 3 8, जिहदे अखीर 'च 8 है, तो जे अखीर 'च 8 है तो भाग फिर दोबारा 2 नाल ही करनी सी। इस करके हुण 3 3 8 नूं असीं 2 नाल भाग करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखो, 3 3 8 नूं 2 नाल भाग करांगे, 2 एकम 2 बकाया 1 उपर उतार लिया 3, 2 छिके 12 बकाया 1 उपर उतार लिया 8, 2 नाया 18, भाग खत्म हो गई। तो साठ असीं भाग कीती किहदे नाल है दसो, 2 नाल कीती, इत्थे 2 लिखांगे तो 169 आ गया। हुण तुसीं थोड़ा जिहा गल याद रखियो, कुछ गल्लां याद करन योग होंदियां ने कि बई 11 गुणा 11 121 हुंदा है, 13 गुणा 13 169 हुंदा है, 17 गुणा 17 299, तो 19 गुणा 19 361, तो 23 गुणा 23 529। याद रखनी है बेटा गल्लां, क्योंकि जे 169 आ गया ना तो वो ना 2 के बड़े ते जाएगा, ना 3 ते, ना 5 ते, ना 7 ते, ना 11 ते, वो सिर्फ 13 ते जाएगा। 13 ते 169 जाता है, याद रखना है। 17 ते तुहानूं मैं दस्सिया 299 जाता है, 19 ते 361 जाता है, 23 ते 529 जाता है। ये तुहानूं याद होना चाहिए। जिद्दां ही 169 आया तो आपां भाड़ा 13 का ही लेना है, तो जो 13 ते ही जाएगा फिर 13 एकम 13। इस करके छोटियां जी गल्लां याद कर लोगे तो तुहानूं सौखा होएगा। हुण वही आपां 676 वर्गमूल दे विच लिखना है, तो बराबर वर्गमूल के अंदर असीं लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। फिर जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि असीं हुण जोड़े बनाने ने, 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल गया, 13 का एक जोड़ा बन गया, 13 बाहर निकल गया, गुणा की 26, साडा आंसर भी आ गया। क्वेश्चन खत्म। इन्ने सौखे क्वेश्चन ने, ध्यान नाल समझण की कोशिश करो बस। इसी तरह देखो सी भाग मैं सीधा ही कर दिता है, मैं भाग करके नहीं दिखाइया तुहानूं, तुसीं अपने आप ही अखीर 6 सीगा 2 नाल भाग करके देखो, यही आएगा। फिर 2 नाल भाग करो, 2 नाल ही भाग कर देंगे, क्योंकि अखीर 2 4 6 8 ही चल रहा सीगा। तो जदों अखीर 9 आ गया तो फिर 9 3 दे बढ़ते चला गया। तो ये सारे नंबर जो मैं इत्थे लिखिया तो जोड़े बनाने शुरू किए। 2 का जोड़ा 1 बार, ये 2 का 1 जोड़ा बार, ये जोड़े का 1 2 बार, ये भी बार, ये भी बार, ये भी बार, तो गुणा किया, आंसर आ गया। सी पार्ट भी साडा कंप्लीट है। तुसीं आराम नाल कॉपी ते लिख सकते हो, तो भाग करके देख सकते हो कि यही आंसर आ रहे कि नहीं। चौथे पार्ट च बेटा देखा, अखीर 6 सीगा, पहले 2 नाल भाग की, फिर अखीर 8 आया, फिर 2 नाल भाग की। हुण जो 729 आ गया तो फिर आपां 3 नाल भाग करके देखिया तो भाग पूरी हो गई। फिर 3 नाल भाग किया, उदों तक भाग करते रहे जो तक भाग होंदी गई, तो फिर उसी तरीके नाल जोड़े बना के बाहर कढ़ दिता। ये बेटा भाग कर करके तुसीं देखणियां ने, बहुत ही सौखे ढंग नाल तुहानूं गुणनखंड बनाने आ जाणगे। इसी तरह ई ते एफ पार्ट भी देखो कंप्लीट कर दिता गया। 6400 नूं पहले 2 नाल भाग किया, 3200 आया, फिर 2 नाल भाग किया 1600, फिर 2 नाल भाग किया, उदों तक भाग करते रहे जो तक 2 नाल भाग हो रही है। अखीर 25 बच गया सी, वो 5 नाल भाग हो गया। तो फिर से जोड़े तरीके नाल असीं दो जोड़े का एक नंबर बाहर कट के गुणा किया है। सेम इसी तरह ही एफ पार्ट तुसीं देख सकते हो, भाग करके तुहानूं समझ आएगा। अगला भाग करते हैं जी ते एच। तो ये बेटा देखो 2 पार्ट अगेन 121। एक इत्थे थोड़ा ध्यान नाल देखो, मैं तुहानूं याद करवाया सीगा कि 11 121 11 के पढ़े ते ही जाता है। इस करके मैं पहला 2 के पढ़े नाल भाग नहीं की, सीधा 11 नाल भाग की। 11 नूं 121 ते 11 लिख लिया, 2 0 नाल लग गए, फिर 11 एकम 11 2 0 नाल लग गए। हुण सौखा हो गया ना 2 नाल भाग करना, पहला थोड़ा वड्डा लग रहा सीगा। तो 1 ਜਾਂ 24 के अखीर 4 सीगा, 2 नाल ही भाग करता रहा, जदों तक भाग होंदी रही तो अखीर तक खत्म ही हो गया। तो फिर वही सारे नंबर लिख के 2 2 का जोड़ा का 1 2 1 2 1 2 बार कढ़ते गए, तो इनू गुणा करके साढ़े कोल 32 आंसर आ गया। तो ये साढ़ा जिहड़ा मैथड सीगा, ये अभाज गुणनखंड विधि का मैथड सीगा वर्गमूल पता करन दा। असीं इस अज दी वीडियो दे विच 2 तरह नाल वर्गमूल पता करने सीखे ने, एक घटाओ विधि ते एक अभाज गुणनखंड विधि। उम्मीद है समझ आया होगा। जेकर वीडियो वधिया लगी हो जरूर लाइक करना है, वध तो वध शेयर करना है इस वीडियो, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो का बेनीफिट लै सकन। तो जेकर हजे तक मेरे चैनल को सबसक्राइब ही नहीं किया तो जरूर कर दिओ, तो बैल आइकन भी प्रेस करके फॉर ऑल कर दिओ, जो मेरे वालों बनाई गए वीडियोज़ तुहाडे फोन पर अपने आप ही नोटिफिकेशन के रूप में शो हो जाए।